Ladies and gentlemen, we acknowledge the presence of Honorable Minister for Port, Shipping, Waterways and Ayush, Shri Sarbananda Sonowal ji. The school children are so excited to meet the Honorable Union Minister, and his love for children is visible, the way he is interacting. Yet another special day for PPA family to have Honorable Union Minister for the second consecutive day with us. May I request the head of our family, Shri Harnad, to please welcome the Honorable Chief Guest with bouquet, a small token of appreciation and gratitude, a special gesture for the Honorable Union Minister who has spent 2 days with us, the memories of which we shall cherish for years to come. A bouquet of fresh flowers. And this is Angavastra of Lord Jagannath, Jagannath ji ka pehna hua pato vastra khondua pato. It is said कि जगन्नाथ जी के पहने हुए अंगवस्त्र के साथ बहुत सारा blessings मिलता है. So we wish all the very best to Honorable Union Minister ji in all his future endeavors. There is the filigree work of Jagannath, Balabhadra and Subhadra. We want the Honorable Union Minister to go back with fond memories of Paradeep, our love for him, और जगन्नाथ जी के आशीर्वाद के साथ उनका सारा upcoming assignment सफल हो. Under his able guidance, the port, shipping, waterways sector of India has been flourishing, and we wish the industry to grow further. This marks as a very special day for PPA family to have the Honorable Union Minister with us, who will be inaugurating some very special CSR activities. But time now for the formal welcome address, and may I request Chairman Paradeep Port Authorities, Shri P.L. Harnad, to please do the honor. सबको नमस्कार. Today we are very fortunate that Honorable Minister for Ports, Shipping, Waterways and Ayush, Sri Sarbananda Sonowal ji is with us. For the last 2 days, Sir has inaugurated and laid foundation stones for a number of projects. So it is a Gati Shakti project of 93 crore, which is a 2.4 kilometer road flyover, has been, foundation stone has been laid. So this will segregate the passenger and freight traffic, will enable to handle 400 trucks additional per day. इससे बहुत फ़ायदा भी है लोकल पब्लिक को भी. लोकल पब्लिक अभी आने के लिए कॉमन रास्ता यूज़ करना पड़ता है, वो रास्ता अलग अलग हो जाएगा. पारादीप म्यूनसिपालिटी को जो जनता के लिए ये बहुत भलाई हो जाएगा. इसका अलावा हम एक कन्वेंशन सेंटर को इनॉग्रेट हो गया. एक आयुष उद्यान हम पहले बार कंट्री में पहले बार पूरा जितना प्लांट से वो पूरा आयुष प्लांट से, आयुर्वेदिक प्लांट से जो हमको जनजीवन में रेगुलरली हमको यूज हो जाता है, बहुत सारा डिसीज़ को कम्बैट करने के लिए फ़ायदा मिलता है. उस टाइप का हमको 2000 प्लांट्स का एक आयुष उद्यान को सर आज इनॉग्रेट किया. इसका अलावा एक कंटेनर स्कैनर, 30 करोड़ का कंटेनर स्कैनर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय सर. एंड एक लोकल बॉयज़ के लिए एक अच्छा सा हॉस्टल बना दिया हमको, 50 बेडेड हॉस्टल, ऑलमोस्ट 3 करोड़ खर्च करके अंडर CSR एक्टिविटी, वो भी सर आज इनॉग्रेट कर दिया. इसके अलावा एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है 2 मिलियन लीटर्स पर डे, वो भी आज इनॉग्रेट हो चुका है. सो सुबह सुबह हम लोग गया कोस्टल शिपिंग. सो पहले बार हमारा पारादीप को
वाटरवे के साथ कनेक्ट करने के लिए एक हिस्ट्री आज रच गया। ये हिस्ट्री का सर ने आज इनॉग्रेट कर दिया मॉर्निंग। वो इफ़को से जो जिप्सम जो होता है, पहाड़ जिप्सम होता है, उसको डिस्पैच करने के लिए अभी तक कोई कनेक्टिविटी नहीं था। आज पहले बार पारादीप का हिस्ट्री में ये जो जिप्सम का डिस्पैच करने के लिए वाटरवे का माध्यम से पारादीप के द्वारा वो सर ने इनाग्रेट किए। ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक ओकेजन है, गेम चेंजर है। सर हम अभी लास्ट 3-4 years से लॉट ऑफ CSR एक्टिविटीज वी आर डूइंग सर, बट दिस ईयर सर फॉर द फर्स्ट टाइम इन पारादीप पोर्ट हिस्ट्री वी वांट टू टारगेट दो पूरर सेक्शन से, गरीब सेक्शन से जो बच्चा है उसको टारगेट करना चाहता है सर। ये गरीबी सेक्शन के लिए, जो बच्चे के लिए गरीबी हटाने के लिए वो मेजर एक ही वजह है सर उसका हाथ में, वो पढ़ाई सर। अगर वो पढ़ाई करेगा तो वो भी ऊपर जा पाएगा, उसका फैमिली भी पूरा पॉवर्टी से बाहर आ जाएगा। इसका ध्यान में रख के हम लोग पारादीप पोर्ट ने CSR एक्टिविटी में एक पारादीप पोर्ट विद्या आशीर्वाद करके एक कार्यक्रम लेके आया सर। ये कार्यक्रम आज आपका कर कमलों से शुरू हो जाएगा सर। इसके अंदर हम जितना गरीबी सेक्शन का बच्चा है, 1000 हो 2000 हो, जितना भी होगा हमारा पारादीप इन एंड अराउंड एरिया के लिए, सबका हम एवरी ईयर यूनिफॉर्म्स, उसका स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स, सॉक्स, शूज़, बुक्स, एवरीथिंग जो भी ज़रूरत है उसका बच्चे के लिए वो हम दे देंगे सर। सो दैट ये भी बच्चा दूसरा बच्चे के साथ साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसका मोटिवेशन भी रहेगा स्कूल में जाने के लिए। फिर वो सोचेगा हम किसी से कम नहीं हैं पढ़ने में, एंड उसका उत्सुकता आ जाएगा, देन वो पढ़ाई करेगा, अपना जीवन में अच्छा स्थिति में जाने के लिए ये फ़ायदा हो जाएगा सर। एंड इसका आगे सर हम स्किल डेवलपमेंट में एक टारगेट कर रहे हैं सर। जो इधर बहुत सारा लोग हैं जो डिग्री पास हो गया, इंटरमीडिएट किया, उसमें बच्चा लोग भी, बच्चियाँ भी है, वो सबको इधर होटल मैनेजमेंट और सम टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट करने से उसका नौकरी भी मिल जाएगा सर। उस कार्यक्रम भी हम शुरू करने वाले हैं सर 1-2 महीने के अंदर। और इधर सर बहुत सारा ये आर्फनेजेस है सर पारादीप एरिया में, नंबर ऑफ आर्फनेज। हम लोग 2-3 आर्फनेज गया सर, वो देखा है उसका स्थिति बहुत ही खराब है। हम 2 आर्फनेज के लिए पूरा 5 years का हम उसका रेशन, खाना पीना के लिए सब हम लोग दे लिए सर, उसका जिम्मेदारी। और आज सर आर्फनेज में जो हमारा जो ग्रैंडफादर से ग्रैंड मदर्स जो रहता है उसके लिए बहुत दिक्कत है, उसके लिए हम लोग आज दे रहे हैं सर सबको। आज ओनली टोकन में 10 लोगों को दे रहे हैं सर, बट सबको जितना हमारा जो बुजुर्ग लोग हैं सबको ऑर्फनेज में जो रहता है उसको सबका एक मस्किटो नेट, उसका साड़ीज़ या धोती या उसका ब्लैंकेट, कपड़ा सब हम देने के लिए CSR एक्टिविटी में हम निश्चय कर चुके हैं सर। आज का कार्यक्रम से ये कार्यक्रम भी आज चालू हो जाएगा सर। नेक्स्ट 5 साल ये कंटिन्यूसली चलेगा सर। सो सब लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाहता है सर का, और ऑनरेबल मिनिस्टर का गाइडेंस का वजह से, सपोर्ट का वजह से, विजन का वजह से, लीडरशिप का वजह से एंड ब्लेसिंग्स की वजह से हमारा पारादीप पोर्ट 116 मिलियन टन इस साल ने हम लोग किया। ये चरित्र में ये पहले बार हो गए सर। हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस भी पहले बार इन द हिस्ट्री में 1000 करोड़ से बढ़ गया सर। ये सब आपका डायनेमिक लीडरशिप में ये हो गया सर। आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहने से हम और आगे बढ़ाएंगे और ऊंचाई हम देख लेंगे सर। हमारा टीम बहुत बढ़िया टीम है सर। इधर हमारा एम्प्लॉयज़ भी है सर, प्रेस भी है, कुछ स्टेक होल्डर्स भी है। जो बच्चियाँ जो आज लेना चाहता है वो उसका स्कूल किट्स वो भी आ गया सर। कुछ बुजुर्ग लोग भी आ गया जो आज CSR एक्टिविटी के अंदर किट्स लेने के लिए, वो सब आप इंतज़ार कर रहे हैं सर आपका भाषण सुनने के लिए। आपका भाषण बहुत मोटिवेटिंग होता है सर, बहुत इलेक्ट्रीफाइंग होता है, बहुत एनर्जाइजिंग होता है। ये भाषण सुनने से सर हम सब लोग मोटिवेट हो जाएंगे, हम और अच्छा काम करने के लिए एक प्रारंभ हो जाएगा आज, और बढ़िया हम काम करेंगे सर। पारादीप पोर्ट को आपका लीडरशिप में और आगे ले जाने के लिए हम बहुत पूरा टीम जैसा बन के सर, ये अकेले का किसी का काम नहीं है सर। पूरा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्लास 4 टू चेयरमैन तक सब मिलके, सब स्टेक होल्डर मिलके, सब एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स सब मिलके पारादीप का जनता के साथ में लेके हम आगे बढ़ाएंगे सर। एंड पारादीप पोर्ट में कंट्री में नंबर 1 इसी साल या नेक्स्ट ईयर में हम लोग ट्राई कर रहे हैं सर। हम लोग एक टारगेट रखा है
इस साल में नंबर 1 बनाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे सर। फर्स्ट मेजर पोर्ट इन द कंट्री विथ हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटी। सर आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा सर। ये जगन्नाथ का लाइन में आप आ गए सर। जगन्नाथ का कृपा से, आपका आशीर्वाद से हम और आगे जाएंगे सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Sri Harnath, for those wonderful words of welcome and for being such a wonderful head of the family. Under your guidance and motivation, PPA has been achieving greater heights of success. Africans believe in a philosophy called Ubuntu that says, I am because we are. So does PPA. We believe in giving back. We believe in a sustainable world. What makes PPA different and better than others, that we are not just an organization, we are a family, and we've always been trying to strive for excellence instead of success. And CSR is a very important part of that. Today we have the honor to have with us the Honorable Union Minister. What better occasion than this to initiate two very special CSR activities, Vidya Ashirvad Yojana and Varishtha Kalyan Yojana. Under the Vidya Ashirvad Yojana, Paradip Port Authority is committed to distribute learning aids like school bags, shoes, study materials, copies, tiffin boxes. We have 25 students here to receive these aids from the Honorable Union Minister. May I request them all to join us on stage one by one and receive their kit from the Honorable Union Minister. Under this scheme, we want every child should get equal opportunity to learn, study, and be an instrument for a better India tomorrow. The kit consists study materials, school bags, shoes, tiffin boxes, school uniform, and other allied tools. Some of the children from underprivileged families will be benefited through this CSR activity. Such a noble thought by Paradip Port Authority family to bring in equality. Every child is special. They should get equal opportunity to learn and be better so that the country gets a better future. That is the objective behind Vidya Ashirvad Yojana. 25 children here represent the bigger amount of students who will be receiving this kit by PPA family. And the next Yojana is called Varishtha Kalyan Yojana. I would like to quote Gulzar Sahab here, who says, चूल्हे पर माँ, धूप में बाप जलता है, तब कहीं जाकर एक बच्चा पलता है. It is unfortunate that we have senior citizens in this country who do not get the attention and love they must get. Some are destitute. Some children have abandoned their parents. And there are so many social organizations who are taking care of them. To give an assisting hand, Paradip Port Authority has taken care of the elderly citizens for their sustenance, livelihood. Those are not getting any grant. Those organizations will be getting assistance from our side. The scheme is named Varishtha Kalyan Yojana. This is being launched by the Honorable Union Minister. And we have some elderly beneficiaries here who will be receiving this assistance from our side. We would like to congratulate the organizations who are having old age homes to take care of these elderly parents. These assistants will go a long way in helping the elderly citizens live with dignity, the honor they deserve. And we hope there's no one in Paradip who is a senior citizen, who is not getting enough assistance at this later age of theirs. Their contribution to society should not be forgotten. They have raised their children well,
and it is our responsibility to ensure they live a comfortable life today. Thank you very much, Paradip Port Authority, for having such novel thoughts in mind. Both Vidya Ashirvad Yojana and Varishta Kalyan Yojana will go a long way in giving social security to people who are underprivileged, who are deprived of basic facilities. But PPA shall always be there for them. This is the initiation of a very special segment of our CSR activities. And we hope with time we will continue such measures to all sections of society as we have pledged to make Paradip a better place than tomorrow. And over the years, all the CSR activities of Paradip Port Authority has been beneficial for different segment of people, from medical assistance to education to hospitals, colleges, schools. In every segment, our CSR activity has been well appreciated, and we cannot thank Honorable Union Minister enough for his presence and inauguration of CSR activities. All of us here are waiting to hear from the Honorable Chief Guest, Honorable Union Minister, Ports, Shipping, Waterways, and Ministry of Ayush. May I request Shri Sarbananda Sonowal ji to please enlighten us with his address. नमस्कार। जय जगन्नाथ। अपन माने कि पारी अशांति भाला टा आओ भाला आओ। इज इट ओके? ठीक है, कोई गलती तो नहीं हुआ है? मैं मैं जय जगन्नाथ की शरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम देते हुए आज इस सभागृह में उपस्थित सभी गण्यमान्य हमारे सभासदों को मैं हृदय से प्रणाम देता हूं, शुभकामना देता हूं। और हमारे बीच उपस्थित पारादीप पोर्ट अथॉरिटी की अध्यक्ष हरजीव जी और बाकी सारे अधिकारीगण और पत्रकार बंधु, कल से आज तक मैंने पारादीप का अलग अलग इलाका में दौरा किया और इस पारादीप पोर्ट में बचे हुए हमारे
सरकारी जो व्यवस्था उसको मैंने देखा, और ये पहला मेरा दौरा है, ये पहला विजिट है। इस विजिट में मैंने एक बात विशेष रूप से मैंने देखा कि पारादीप की जनता, आम जनता और उड़ीसा की जनता बहुत महान है। आप लोगों का सकारात्मक जो सहयोग, जो सोच, इसके वजह से आज पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने कम उम्र में ही दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। स्वतंत्रता की पिछले 75 साल के अंदर आज़ादी के अमृत महोत्सव में किसी का अगर जन्म हुआ, ये पारादीप पोर्ट का जन्म हुआ, गठन हुआ, और इस पोर्ट को बच्चों को जैसे माता पिता बड़े प्यार से, आदर स्नेह से उसको बड़े करते हैं, उसी हिसाब से पारादीप के जनताओं ने, उड़ीसा की जनताओं ने बड़े आदर निष्ठापूर्वक इस पोर्ट को बड़ा करने में आप लोगों ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तो आपकी जो सहयोग, ये सहयोग के वजह से आज ये पोर्ट देश के अलग अलग पोर्ट का साथ तरक्की करने में वो आज विशेष सफलता प्राप्त की है। तो मैं इसलिए फिर से आप सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं, और ऐसे ही आप इस सारी व्यवस्था में जुड़े रहिए, क्योंकि जनता की सहयोग के बिना कोई भी सरकारी परियोजना को सफल बनाने के सिलसिले में ये संभव नहीं है। अगर जनता का सहयोग होंगे तो हर परियोजना को हम सही समय पे सही हम उसको लागू कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि आप भविष्य में भी जो भी हमारे अगले दिनों के लिए परियोजना है, हमारे बड़े बड़े जो प्रोग्राम है, जो इनिशिएटिव है, जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप ऐसे ही सहयोग देते रहे। आज देश के अंदर आप लोगों ने, हम लोगों ने, सब ने ये देखा है, जो हकीकत है, जो सही है, कि देश के परम आदरणीय, सारे दुनिया की, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछली 7.5 साल में, यानी कि 2014 से अब तक जो परिवर्तन हमने देखी है, इसकी वजह से आज देश का हर प्रांत जाग उठा है और जनता के मन में आत्मविश्वास दुगुना बढ़ चुका है। जो हकीकत में परिवर्तन लाने में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस हिसाब से सफलता प्राप्त की है, इससे हर नागरिक की दिल में ऐसा उमंग, जुनून, उत्साह पैदा हुआ है और उनके आत्मविश्वास दुगुना बढ़ने की वजह से आज मोदी जी के नेतृत्व में ये हिंदुस्तान दुनिया का एक शक्तिशाली देश बनने जा रहा है। और यह निश्चित है, उन्हीं के नेतृत्व में यह देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा। क्योंकि आज असम हो या उड़ीसा हो, केरल हो या कश्मीर हो, गुजरात हो या मणिपुर हो, आप कन्याकुमारी से कश्मीर, लद्दाख, कारगिल तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, ये बड़े देश के अंदर बसे हुए, हर प्रांत में बसे हुए हर नागरिक
को आज ऐसा एक माहौल मिला है कि सबको लगने लगा है कि हम अब पीछे नहीं रहेंगे, हम आगे चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे और हमारे विकास की गति बढ़ते जाएगा। इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नई नई परियोजना के जरिए देश को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। आप 13 अक्टूबर 2021 आपने देखा है एक नई परियोजना देश की विकास की गति बढ़ाने के लिए लाए हैं। 100 लाख करोड़ की ये पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ये जो परियोजना, इसके वजह से ये निश्चित है देश का तो विकास का गति हमने देखा ही है और इसका गति को कैसे अधिक शक्ति दे, इसके लिए ये परियोजना लाया गया है। मुझे लगता है कि अगले कम समय के अंदर हर व्यक्तियों को, हर नागरिक को इस विषय पे अपनी मजबूत भूमिका निभाने में सबको विशेष रूप से आनंद महसूस होगा, गर्व महसूस होगा, क्योंकि ये देश दुनिया का जब सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से, आत्मनिर्भर देश के हिसाब से खड़ा होगा तो ये स्वाभाविक है आपका, हमारा सबका स्वाभिमान सुरक्षित हो जाएगा। देश का मान सम्मान स्वाभिमान, देश के मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित होगा। ये सब हमारे सबके मन की इच्छा है और मोदी जी ने हमारी इच्छा को पूरा करने में सुबह शाम मेहनत करते आए हैं। हम लोगों ने देखा है एक राष्ट्र नेता, देशभक्त सुबह शाम 26 घंटा के अंदर 20 घंटा मेहनत करते करते हर चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे बुजुर्ग हो, विद्यार्थी हो, महिला हो, हर वर्गों को मजबूत बनाने में अलग अलग स्कीम के जरिए आज जैसे हमारे देशवासियों को मजबूत किया है, इसकी वजह से आज हमें लगने लगा है कि ये देश निश्चित रूप से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा। हमारे सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्मिकता ये हमारा ताकत है, विविधता ये हमारा ताकत है। आप हर प्रांत में जाइए, अलग अलग संस्कृतियों का धारा है। कल मैंने देखा है हमारे कलाकार ने उड़िया संस्कृति का प्रदर्शन किया, इतना खूबसूरत, वाह! हे प्रभु, क्या आपका वरदान है। इसलिए ये देश कोई मामूली देश नहीं है। तो हर प्रांत में आध्यात्मिक जैसे महास्थान बसा हुआ है, इस महास्थान में वो महाशक्ति बसा हुआ है। इस शक्ति के द्वारा देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा, देश को मजबूत बनाना होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत हमें निश्चित रूप से निर्माण करना होगा। नई पीढ़ियों को उजागर करना होगा। नई पीढ़ी, जिस पीढ़ियों को हमने अभी उनको उत्साह देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वो अध्ययन ठीक से करे, मेहनत करे, इसके लिए उनको छोटा सा तोहफा दिया हम लोगों ने, है ना। हमारी नई पीढ़ी जो विद्यार्थी है, ये हमारे देश का भविष्य है। नई नई टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, इनोवेशन, इंक्यूबेशन, वैल्यू एडेड थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, जितना भी हम लोगों ने नई नई व्यवस्था खड़ा की है, चाहे पोर्ट में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे रोड में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे एजुकेशन में हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में हो, हर क्षेत्र में जिस हिसाब से उसको इंटीग्रेट किया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है, सब इन बच्चों को शक्तिशाली बनाने के लिए, उनका भविष्य
मजबूत बनाने के लिए। और ये देश आप ही को भविष्य में विशेष रूप से नेतृत्व देना होगा। इसलिए नई पीढ़ी हमारे सारे प्रक्रिया में जुड़ जाए, इसके लिए माँ बाप को भी आगे आना होगा। हमारे परम आदरणीय माता पिता, उनकी पेरेंट्स और हमारे परम आदरणीय शिक्षा गुरु, टीचर्स, टीचिंग कम्युनिटी, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, तीनों शक्ति अगर एक साथ जोड़ जाए और साथ साथ सरकार का जो व्यवस्था जोड़ जाए तो हमारी नई पीढ़ी निश्चित रूप से सफल पीढ़ी बनेगा, सफल व्यक्ति बनेगा, ये निश्चित है। हम देखना चाहते हैं कि वी आर टू प्रूव दैट वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दिस इज द एज ऑफ कंपटीशन, स्टीप कंपटीशन। इस स्पीड कंपटीशन के जमाने में हर विद्यार्थियों को अपने आप को सजाना होगा। नॉलेज इज पावर, और नॉलेज हासिल करने के लिए आपको अध्ययन करना होगा। एक दिन के अंदर 10 घंटा नहीं, 15 घंटा तक आपको मेहनत करना होगा, तब जाके सफलता प्राप्ति आपके लिए संभव होगा। क्योंकि मेहनत का बिना मंजिल दिखाई नहीं देता, मुकद्दर आप नहीं बना सकता। मेहनत के जरिए अपने आप को मजबूत बनाना होगा, तब जाके मंजिल हासिल होगा। इसलिए मेहनत करना होगा, सभी को मेहनत करना होगा। वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड। आप अध्ययन कीजिए, तब आप नॉलेज एक्वायर कीजिए। ज्ञानी जब आप होंगे तो दुनिया आपको हमेशा श्रद्धापूर्वक संबोधन करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी नई पीढ़ी उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करे और स्टिफ कंपटीशन के जमाने में अलग अलग क्षेत्र में कंपटीशन में भाग ले और अपने काबिलियत दिखाए और कहे, आई एम द बेस्ट एमंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। उसी दिशा पर अपने देश को आगे बढ़ाना होगा। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें ऐसा एक महान व्यक्ति ने नेतृत्व दी है जो ईमानदार है, मेहनती है, निष्ठावान है, देशभक्त है, ज्ञानी है। ऐसा महान नेता नरेंद्र मोदी जी हमें नेतृत्व दे रहा है। और उन्हीं के दिए हुए नेतृत्व में आज देश के विकास किस हिसाब से आज संभव हुआ है, हम लोगों ने देखा है, सबने महसूस किया है, सबने उपलब्धि किया है। तो इसलिए आप सब जुड़ जाइए। माता पिता, शिक्षा गुरु, आदि गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, हमारी परंपरा में तो यही है ना। पहले माता पिता का चरणों में समर्पित भावनाओं से प्रणाम, उसके बाद शिक्षा गुरु को चरणों में समर्पित भावनाओं से प्रणाम, और उसके बाद दीक्षा गुरु, आध्यात्मिक गुरु के चरणों में समर्पित भावनाओं से प्रणाम। तब जाके अपने जीवन को एक खूबसूरत जीवन आप निश्चित रूप से सजा सकते हैं। ये दुनिया कितना खूबसूरत है, भगवान ने अपने हाथों से सजाया है। ये पृथ्वी का जन्म किसने दिया है, इसका सजावट कितना खूबसूरत है। नेचर इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो अट्रैक्टिव। कितना शांत है, इतना सरल है, इतना सकारात्मक है। जब भी आप नेचर देखे, पेड़ देखे, पहाड़ देखे, पानी देखे, सागर देखे, महासागर देखे, झील देखे, झरनी देखे, आकाश देखे, अंतरिक्ष, हर प्रांत में कितना खूबसूरत नजरिया है। इसका सजावट का जिम्मेदारी किसने पालन किया है, प्रभु ने पालन किया है, भगवान ने हमारे लिए सजाया है। इसलिए प्रकृतियों को सही सुरक्षा, प्रकृतियों का नियम सही पालन करना हर प्राणियों का कर्तव्य है। और इसलिए इस प्रकृतियों को सुरक्षित करने के सिलसिले में हमारे पोर्ट अथॉरिटी ने यहां आज 2000 मेडिसिनल प्लान का एक शुभारंभ कार्यक्रम उन्होंने सफल किया है। और आपको भी, विद्यार्थियों को भी आदर करना होगा, पेड़ पौधा को आदर करना होगा।
अगर प्रकृति बसेगा तो प्राणी बसेगा, अगर प्रकृति नहीं बसेगा कोई प्राणी नहीं जी सकती, ना हम रहेंगे ना कोई अलग प्राणी रहेगा। इसलिए प्रकृतियों को प्रिजर्व करना, सुरक्षित करना हर प्राणी का कर्तव्य बनता है। यही प्रकृति का नियम है। मैं आयुष मंत्री होने के नाते हमारे आयुष मंत्रालय आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोहारिकपा, योगा, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी, ये अलग अलग हमारे आयुष परिवार की हिस्सा है। अलग अलग सिस्टम से सदियों से, हजारों साल से हमारे बीच परंपरागत चिकित्सा पद्धति बसा हुआ है। इस पद्धति के द्वारा हमारे पेड़ पौधा में जो औषधि का गुण है, इसी के ऊपर हमारे जीवन आज तक बसे हुए हैं। तो इसलिए प्रकृति में क्या नहीं है, प्रभु ने सब कुछ दिया है। अनाज दिया है, पानी दिया है, आपके लिए सहारा दिया है, आपके लिए औषध दिया है। ये हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा ये परंपरागत पद्धति का इसका फार्मेसी माना जाता है। इतना शक्ति प्रकृति में बसा हुआ है। इसलिए प्रकृति को सुरक्षित करना, पोल्यूशन फ्री रखना हमारा सबका फर्ज बनता है। इसलिए हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी इस विषय पर जुड़ जाए। तो आज पारादीप में आप लोगों ने जो प्यार दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। और मैं विशेष रूप से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्हीं की दिए हुए शक्ति से, आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से और उनके दिए हुए निर्देश से आज पारादीप में अलग अलग व्यवस्था खड़ा हुआ है। और अगले दिनों में पारादीप दुनिया का मेगा पोर्ट बनने जा रहा है। ये पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ये मेगा पोर्ट बनेगा। मेजर पोर्ट तो छोटा पड़ जाएगा, मेगा पोर्ट बनेगा। यानी कि लक्ष्य तय किया गया है अगली 2030 तक इंडिया मैरीटाइम विजन के अनुसार मुताबिक जो लक्ष्य स्थिर किया गया है, उसी हिसाब से हमारे पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने ये लक्ष्य तय किया है कि अगली 2030 तक इनकी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी आज 116 यानी कि 116.25 मिलियन टन से बढ़ के 400 मिलियन तक कार्गो हैंडलिंग करेगा। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए आपका सहयोग चाहिए। हमारे पोर्ट अथॉरिटी का जो भी अधिकारी है, कर्मचारी है, वो तो व्यवस्था को खड़ा करेंगे, लेकिन ये पोर्ट का जो यूजर है, स्टेक होल्डर है, जो कंपनी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो एक्सपोर्टर है, जो इंपोर्टर है, सबको सहयोग करना होगा। पीपीपी यानी कि सबका जिम्मेदारी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका मतलब क्या है? सिर्फ पब्लिक करेगा ऐसा नहीं, प्राइवेट का भी जिम्मेदारी है। सब पीएम साहब का जो नीति है, वो नीति है क्या? सबका प्रयास, यानी कि सबको मेहनत करना होगा, तब जाके हमारा ये लक्ष्य पूरा होगा। तो इसलिए इतना बड़ा व्यवस्था खड़ा होने जा रहा है। और ये पारादीप तो मुझे लगता है कि एशिया का ये एक प्रमुख इंडस्ट्री सेंटर बनने जा रहा है, एशिया का, हिंदुस्तान का ही नहीं। और भी कितना बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहा है। और हमारी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ही अगले दिनों में 10,000 करोड़ का नई प्रोजेक्ट खड़ा होगा। यहाँ 10,000 करोड़ अलग अलग, मैं सारे प्रोजेक्ट को उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। 10,000 करोड़ यहां निवेश किया जाएगा। यह लक्ष्य सागरमाला में है, यह लक्ष्य इंडिया मैरीटाइम विजन में है, इस लक्ष्य आधुनिकीकरण में है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पोर्ट फैसिलिटीज, पोर्टलेस इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इतना तक, और 3 बज गया, हाँ समय हो गया। हम लोग का बड़ा बुरा आदत है, जब ऐसे सरल सकारात्मक कोई इंसान आपके पास में होते हैं तो
भाषण का प्रक्रिया जारी रहता है, हाँ? तो इसमें स्पीड ब्रेकर देना होगा अभी, क्योंकि 3 बजे मुझे भी निकालना है यहाँ से। जो भी हो, मैं हमारे उड़ीसा प्रदेश सरकार, राज्य सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे चीफ मिनिस्टर पटनायक जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके सरकार ने हमारे हर कार्यक्रम में साथ दिया है, मदद किया है, और आज तो आप लोगों ने इतिहास रचना किया है। महानदी और बंगोपसागर, ऐसे तो रिश्ता है, सदियों से है। It is flowing to the Bay of Bengal, that Mahanadi, one of the biggest river in the country. लेकिन आज हमारे पहली बार के लिए ये कार्गो वेसल बार्ज आज महानदी से होके पारादीप पोर्ट तक चलने का काम शुरू हुआ। यानी कि इनलैंड वाटरवेज और कोस्टल वाटरवेज दोनों का महामिलन आज कार्गो वेसल के जरिए संभव हो गया है। यह संभव आप लोगों ने की है, उड़ीसा की जनताओं ने, पारादीप का जनताओं ने की है, और प्रदेश सरकार के सहयोग है। इसके लिए मैं पटनायक जी को, चीफ मिनिस्टर जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। और अगले दिनों में जो भी हमारा कार्यक्रम होगा, हर कार्यक्रम में ऐसे ही साथ देते रहे। और हम चाहते हैं कि हमारा अगर हर प्रांत, हर प्रदेश, हर यूनियन टेरिटरीज ऐसे ही विकास की गति को बढ़ाने में सफलता प्राप्त करे, तो निश्चित रूप से कम दिनों के अंदर ये भारत, भारत माता की, यही है भारत, भारत माता की जय, ये नारा हम भक्ति भावनाओं से, भारत माताओं के चरणों पे समर्पित भावनाओं से हम निश्चित रूप से इसको हमेशा ऐसे ही आवाज देते रहे। भक्ति भावनाओं से भारत माताओं को हम विशेष रूप से सेवा करते रहे। ये भावना शक्ति हर नागरिक के मन में हर पल उजागर होते रहे, यही मेरा इच्छा है। तो आज इसी शब्दों के साथ मैं फिर से हमारे पोर्ट के चेयरमैन, हमारे मिस्टर हरनाथ ये भगवान का ही नाम है, हरनाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और उनकी जो भी साथी है, हमारे बनर्जी बोस, हमारे जो भी उपाध्यक्ष है बोस, और सारे पारादीप पोर्ट अथॉरिटी की सारे अधिकारी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और सारी कर्मचारीगण, आप सबको मैं धन्यवाद देता चाहता हूं। आप लोगों ने भी बहुत मेहनत करते आए हैं, ऐसे करते जाइए। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और पारादीप का जनता, पारादीप का जनप्रतिनिधि, आप सब लोगों ने, और हमारे सारे स्टेक होल्डर को तो नाम लेना ही होगा। आपका बिना हमारा पोर्ट चलेगा नहीं। आप यूजर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप शामिल होने के वजह से आज हमें भी उत्साह मिला है कि हम फैसिलिटी बढ़ाए, मोस्ट आधुनिक फैसिलिटी खड़ा करें, ताकि हमारे कार्गो लोडिंग अनलोडिंग में कोई विलंब ना हो जाए, और हम दुनिया का जितना भी बड़े बड़े पोर्ट है इसका साथ तक कर दे सके। उसी काबिलियत को हम दिखाने के लिए अगले दिनों में हम प्रतिबद्ध है। इसी शब्दों का साथ पत्रकार बंधु, आप लोगों को भी विशेष दरखास्त है, आपके जरिए हमारी बात आम जनता तक पहुंचती है, तो आप लोग हमेशा हमें सहयोग करते आए हैं, और भविष्य में भी आप हमारे हर कार्यक्रम में सहयोग देते जाइए, यही हमारा आप लोगों से निवेदन है। इसी शब्दों का साथ मैं अपने भाषण को यहीं विराम देना चाहता हूं। जय हिंद। Thank you very much for the precious words. May I request Shri Bose to please propose vote of thanks. May we give a standing ovation to the Honorable Union Minister, show our love for him. Thank you so much, sir, for being here. The 2 days had been most memorable. Thank you.